حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو کیونکہ نماز گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ایک مرد اگر عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت بنتا ہے، اور اگر عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے سکون۔ کبھی کبھی انسان محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ خود کو بھول جاتا ہے، مگر محبت ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ کون سچا تھا۔ زندگی میں جب کوئی تمہیں چھوڑ دے تو غم نہ کرنا، کیونکہ جو تمہیں چھوڑتا ہے وہ دراصل خود کو تمہاری دعا سے محروم کر لیتا ہے۔ اکثر اوقات انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا جب وہ خوشی اس سے چھن جاتی ہے۔ انسان جب اپنے دل سے کسی کا غم نکال دیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دو دل ایک دوسرے کی خاموشی سمجھنے لگیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے نماز کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی کے احساسات سے کھیل مت کرنا، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ گناہوں میں ڈوبتا ہے اتنا ہی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں سمجھنے لگے تو اس کو کھو مت دینا، کیونکہ سمجھنے والے لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں صبر دے رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک سجدہ 1000 آہوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دل سے کہہ دو، میری مرضی نہیں بلکہ جیسی اللہ کی مرضی۔ جو لوگ تمہاری خاموشی کو سمجھ جاتے ہیں وہی تمہارے اصل ہمدرد ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے جو اسے دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانا مشکل نہیں، مگر اس جگہ کو قائم رکھنا صبر، سچائی اور خلوص مانگتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ان کی زندگی میں برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب انسان راضی باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے دکھ بھی سکون بن جاتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ مولا علی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ بچوں کے چہرے پر اتنا نور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں مگر سازشیں نہیں کرتے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں یا رب، بس تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اور جس دن تم نے یہ مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا
वो तुम्हें कबूल है। उस दिन के बाद से हर फैसला तुम्हारे हक में होगा। जिसे खो दिया तुमने वो रब की रजा थी, और जो अब तुम्हारा होगा वो तुम्हारे सब्र का सिला होगा। और जो तुमसे नहीं होता वो अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह सब संभाल लेगा। बस इस पर तवक्कुल रखो, दुआ करते रहो, और देखना एक दिन तुम्हारी कहानी कुन फयकून पर खत्म होगी। बात तो सारी यकीन की होती है, बस कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, यकीन रखो कि अगर तुमने अपनी दुआएं अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं तो वो दुआएं तवील सफर के बाद खूबसूरत मंजिल ही लाएंगी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजे से मुसलसल टपकती हुई बेजारी और तल्ख रोइये हमें तोड़ कर रख देते हैं। माजरत का लफ्ज सिर्फ उस शख्स के लिए होता है जिसके पांव पर आपने कदम रखा हो, उसके लिए नहीं जिसके दिल को आपने कुचला हो। और फिर मनपसंद शख्स का बिछड़ जाना जिंदगी के सारे ज़ौक़ खा जाता है। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब करना भूल जाता है। इससे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत की क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बावजूद भी वो हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों के मानिंद होते हैं, जो फासले तो कम नहीं करते मगर सफर आसान जरूर कर देते हैं। वो इंसान आपकी कभी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहते हैं। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। रिस्क का वादा भी है फिर भी सब परेशान हैं, और मगफिरत का वादा भी नहीं फिर भी कोई परवाह नहीं। हर वक्त अपना तन और मन पाक रखो, क्या पता कब अल्लाह से मुलाकात हो जाए। अल्लाह का बनाया हुआ हर इंसान खूबसूरत है, बस कमी हमारे अखलाक और रवैयों में है। सिर्फ अपनी चाहत का मिल जाना मोजिजा नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी होना भी एक मोजिजा है। इतनी खूबसूरती से मांगो जितनी खूबसूरती से उसका दिल दुखाया हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुम्हें इज्जत दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। इस्तिगफार की तौफीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी होती है। रास्ते तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं ना, उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से मुख्तलिफ है। कुरान कहता है, लोगों की साजिशें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचेगा। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तन्हा इसलिए कर देती है ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारे पास अल्लाह है और वही काफी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में नूर पैदा हो तो दिल को गुनाहों से खाली कर दो। जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं वो तुम्हारी कोशिश से नहीं मिल सकती, और जो नसीब में है वो तुमसे छिन नहीं सकती। जिंदगी तब खूबसूरत लगने लगती है जब तुम अल्लाह की रजा में खुश रहना सीख लेते हो। इंसान जब दिल से तौबा करता है तो उसके चेहरे पर वो सुकून आ जाता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो आजिज़ी में बड़ा हो, न कि माल में। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुख इसलिए देता है ताकि तुम दुआ मांगना न छोड़ो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं, याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो कभी उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। जब तुम्हारा यकीन अल्लाह पर मजबूत हो जाता है तो तुम्हें दुनिया के फैसलों की परवाह नहीं रहती। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए मगर उम्मीद कभी खत्म ना करना, क्योंकि उम्मीद अल्लाह से जोड़ने वाली रस्सी है। इंसान जब खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है
तो अल्लाह उसकी हर कमजोरी को ताकत बना देता है। और कभी कभी तुम्हारा खामोश रहना तुम्हारी दुआ बन जाता है, क्योंकि अल्लाह दिलों की जुबान सुनता है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी आसान हो जाए तो अपने दिल से नफरत, हसद और तकब्बुर निकाल दो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि यही तुम्हारे ईमान की पुख्तगी है। अल्लाह जब किसी के साथ होता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंसान जब अपनी रजा को अल्लाह की रजा में बदल देता है तो उसके नसीब बदल जाते हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से इसलिए देता है ताकि तुम्हें वो बेहतर चीज दे जो तुम मांग ही नहीं सकते। याद रखो, अगर तुम अल्लाह के करीब हो गए तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। जो शख्स सब्र को अपना जेवर बना लेता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। जिंदगी एक सफर है जहां हर दुख तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का जरिया है। अल्लाह से मांगना कभी बंद ना करो, क्योंकि वो वही रब है जो बंदे के दिल की खामोश ख्वाहिश भी जानता है। जो चीज तुम्हारे दिल को सुकून देती है, समझ लो वही अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। कभी कभी तुम्हारे जख्म तुम्हारे रब से मुलाकात की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है तो समझ लो अल्लाह कोई नया आगाज करने वाला है। अल्लाह की रहमत उस बंदे को भी नहीं छोड़ती जो खुद को गुनाहगार समझकर दूर भागता है। याद रखो, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे नसीब का नहीं था, और जो तुम्हारे नसीब का है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये पैगाम दिल को सुकून देने वाला लगा हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना ईमान, सब्र और सुकून से भरा नया पैगाम पहुंचता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह आपका हामी और